हेलो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप इस ट्रबल सम टाइम में, इस मुसीबत के क्षणों में आप सभी और आपका परिवार सभी ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि किस तरह से गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। गुडविल एक इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारे लिए। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट वी शैल डू हियर। एक तो सीखेंगे कि व्हाट इज गुडविल, concept of goodwill, what are the features and natures of goodwill, how it is valued, different methods we will learn here, and which is the best method, which is a suitable method for valuation of a goodwill. तो सबसे पहले गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट है। अर्लियर इन द ओल्ड टाइम्स अकाउंटिंग थिंकर्स इसको फिक्टिशियस एसेट्स कहते थे, but nowadays it is not a fictitious asset, it is a valuable asset which has a realizable value. Goodwill can be realized at the time of selling of business or conversion of one type of business into other type of business organization. Although goodwill is very difficult to define because it is affected by various elements, various factors. So it is difficult to define. Goodwill help us to earn higher profits. So goodwill helps a business to earn higher profits. And how higher profits can be made? If our business organization, if our organization has a good terms with others, good relation with others, good connection with others, we have a reputation, we have a brand value, then we can increase our goodwill. This will help us to maintain and even help us to earn higher profits. So it is invisible element. It has no physical existence. So we called it an intangible asset. So as Investopedia defined, the value of company's brand name, solid customer base. कि अगर हमारा customer base widen, अगर हमारी marketing strategies अच्छी हैं, हम present customer base जो है वो तो है ही है, potential customer को भी अपने साथ associate करते हैं, जोड़ते हैं, relations हमारे अच्छे हैं, तो all are the parts of marketing. Good employee relations, कि अगर मेरे एम्प्लॉइज हैं, अगर वो खुश हैं, उनको हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर वी हैव सम इंटेलेक्चुअल राइट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट्स, इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स. दिस विल आल्सो इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू. आप मार्केट में जाते हैं, ब्रांडेड गुड्स देखते हैं, so it will increase these intellectual property rights, these IPRs, increase the business. So goodwill exist. तो ये चीजें क्या खींचेंगी कस्टमर को आपकी तरफ, तो गुडविल इंक्रीज होगी कि उसके पास अच्छी चीज मिलती है. दिस इज द गुडविल. हिंदी में ख्याति बोलते हैं. तो ऑल्सो आई हैव टेकन दिस कोट फ्रॉम accountingnotes.net. From the accountant's point of view, goodwill in the sense of attracting customers, I have already explained this thing, little significance unless it has a sellable value. To the accountants, therefore, goodwill may be said to be that element arising from the reputation, arising from your connection, the advantage possessed by a business which enables it to earn higher profits. कि नॉर्मल प्रॉफिट जो अदर फर्म कर रही है उससे ज्यादा मेरी फर्म अर्न कर रही है, तो भाई तो net tangible asset employed in the business, that net tangible asset is called goodwill. Now we see what are the factors affecting the goodwill. There are starting में हमने देखा कि goodwill is affected by number of elements, number of factors. You may say it origin of goodwill, you may say it factors affecting the goodwill. Location of your business premises, this is very important. If your business has is very easy to approach,
सभी जा सकते हैं, चाहे वो किड्स हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों। इजी लोकेशन, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुडविल, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द गुडविल। रेपुटेशन ऑफ योर मैनेजमेंट, कि आपके प्रमोटर्स कौन है, पहले ही हम यही पूछते हैं कि आपके प्रमोटर्स कौन है। प्रमोटर मीन who float the company, who conceived the idea to form a company। तो आपकी मैनेजमेंट कैसी है? अगर वो हर तरह की कंप्लेंट्स को हैंडल करती है, उसके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो गुडविल इंक्रीज होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि वी हैव इन्वेस्टेड 1 लाख इनटू द बिजनेस एंड वी आर गेटिंग 10% प्रॉफिट्स, मीन 10,000 rupees. Other has invested 50,000 and also earning 10%. तो हमारी कैपिटल ज्यादा, रेट ऑफ प्रॉफिट के हैं सेम। तो इसलिए ध्यान रखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, वेदर वी आर अर्निंग द हायर फ्रॉम अदर्स और नॉट। इफ वी आर अर्निंग हायर, देन इंक्रीज इन गुडविल, अदरवाइज रिड्यूस इन गुडविल, बिकॉज गुडविल इज ऑलवेज फ्लैक्चुएट विद द प्रॉफिट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपने देखना रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स आल्सो अफेक्ट द गुडविल। If you are selling the qualitative product in the market, it will increase your goodwill. Longevity of the business, you can take the example of Colgate। आज भी लोगों का क्या है, फेथ है कोलगेट पे, चाहे जितनी मर्जी कोलगेट डालें। तो लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस की सबसे पुराना ब्रांड है, कि हम यही कई भी घर पे चीज लेके आते हैं, पहले ये बहुत पुराना, हमारे टाइम पे आते थे, सुनते हैं अपने पेरेंट्स से भी। तो लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स गुडविल। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, इन द अर्लियर स्लाइड आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग, कि अगर हमारे पास ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, हम लाइसेंस्ड गुड्स बेचते हैं, तो इट विल इंक्रीज योर गुडविल। गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर फेवरेबल हैं, कि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाती है, गवर्नमेंट आपको कंसेशंस देती है, इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, गुडविल इंक्रीज होगा। रिस्क इन्वॉल्व, इफ यू आर सेलिंग द रिस्की गुड्स, lesser the goodwill. If you are selling the less risky goods, it will increase the goodwill. Monopolistic rights, if you have monopoly, your profit will increase and increase in goodwill. So these are the factors which affect your goodwill. Now need of valuation, कि किस टाइम पे हम अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, वो देखते हैं। कि जब आप कन्वर्जन करते हैं, अभी मैंने बताया मोस्टली हम गुडविल का वैल्यूएशन जो है सेल ऑफ द बिजनेस, कि जैसे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, जब वो अपना बिजनेस किसी कंपनी को सेल कर रही है, कन्वर्जन है। तो वी आर सेलिंग द बिजनेस टू द कंपनी, तो नीड ऑफ गुडविल अराइज। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट्स इनटू कंपनी और sell its business to company, when company amalgamate in the form of merger or purchase, उस टाइम वैल्यूएशन करते हैं। जब आपके क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, इनकम टैक्स गिफ्ट टैक्स के पर्पज से भी हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। मेजोरिटी ऑफ कंपनी शेयर्स आर हेल्ड बाय, कि जब होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कि जब आपके 50% से ज्यादा शेयर्स दूसरी कंपनी होल्ड कर लेती है, तो दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। तो उस टाइम हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो these are the purposes when the valuation of goodwill arise. Next step, what is the nature of classification of goodwill? तो हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं अपनी गुडविल को। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हैं। और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन की रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे। दिस इज कॉल्ड जूलॉजिकल का मींस, क्योंकि हमने इनके जो नाम है वो एनिमल्स के बेसिस पे है, इसलिए जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। So this is coined by, this term is coined by P.D. Leake in 1921. He defined the goodwill as the right which grows out of all kinds of past effort in seeking profit. कि जो हमने पास्ट में एफर्ट किए हैं, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट आज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो an increase of value or other advantages, this is called goodwill. Rightly said.
तो उन्होंने क्लासिफाई किया डॉग्स गुडविल, कैट्स गुडविल, इनके जो रिफ्लेक्सेस हैं, इनके जो हाव भाव हैं, उनके बेसिस पे। अगर नेचर आ जाए तो आपको ये लिखना कि डॉग क्या हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है, ही इज फेथफुल टू हिज मास्टर। तो इसी तरह कुछ पर्सन्स होते हैं, वो हमेशा क्या है, उस पर्सन के फेस को देख के जाते हैं, ना कि प्लेस को देख के। जहां भी वो जाएगा, अपने बिजनेस को शिफ्ट अगर करेगा तो वहीं चले जाएंगे। तो मीन दिस टाइप ऑफ कस्टमर फॉलो द पर्सन वेयर ही गोस। तो सच टाइप ऑफ कस्टमर और ब्रांड लेवल की, वो अच्छी चीज रखता है वो फलाना बंदा, हम नॉर्मली भी हम अपने घरों में देखते हैं कि वो अच्छी चीज देता है, उसी के पास चलते हैं, कहीं भी शिफ्ट हो जाए। तो दिस इज डॉग्स गुड। कैट्स गुड में कि कैट्स का जो बिहेवियर रहता है कि वो होम के साथ चिपकी रहती है। मालिक कोई भी आ जाए, चेंज होता रहे चाहे, लेकिन उसी होम, वो ओनर हाउस के साथ नहीं जाती कभी भी। सच टाइप ऑफ कस्टमर कॉल्ड कैट्स। If the old owner leave the house, but the customer wants to live with that new owner, कि घर वही रहेगा, बंदा चाहे चेंज हो जाए। रैट्स गुडविल, रैट्स का कोई अटैचमेंट नहीं होता, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो नीदर विद द ओनर नॉर विद द प्लेस। तो दीज आर कैजुअल इन नेचर, कभी किसी दुकान से ले लिया, कभी किसी दुकान से ले लिया। हम एक कहावत यूज करते हैं, मत्था देख के टिक्का लगा। रैबिट्स गुडविल, रैबिट्स क्या है कि नियर बाय प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं। तो साथ वाली दुकान जो होगी वहीं से लेना, चाहे कोई भी। तो डोंट वांट टू गो फॉर अवे, कि दूर नहीं जाना चाहते हैं लोग। तो दिस इज रैबिट्स गुड। नेक्स्ट है, हमने तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। तो इनहेरिएंट इंटरनली और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लाइक आपने कोई ब्रांड बनाया, आपने कोई मास्ट हेड्स, जैसे आप ऊपर देखते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दिस इज कॉल्ड अ मास्ट हेड एटसेट्रा, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नील होगी। इंटरनली का मतलब जो आपने खुद बनाई है, उसकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, नील होगी। जब आप परचेज, क्योंकि अभी बताया कि जब आप बिजनेस सेल करते हैं तो उस टाइम आप गुडविल का क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। तो परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। उस टाइम हम उसका वैल्यूएशन करेंगे, और उसके वैल्यूएशन के लिए वेरियस मेथड्स जो है वो हम यूज करते हैं। तो मेथड्स देखते हैं, देखो। तो 4 मेथड्स हमारे पास, अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें, लमसम मेथड या परचेज कंसिडरेशन मेथड बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये इनके सब क्लासिफिकेशंस आगे की। तो फर्स्ट है देखो लमसम मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। सिंपल, हमने क्या है, टोटल कितने में बिजनेस सेल किया। जैसे परचेज कंसिडरेशन में टोटल बिजनेस 10 लाख में परचेज किया, और हमारी कंपनी की सपोज XYZ लिमिटेड की जैसे नेट एसेट क्या है, 8 लाख है। तो डिफरेंस बिटवीन द नेट एसेट एंड परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड योर गुडविल। की मेरी एसेट 8 लाख की थी, नेट एसेट मीन एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो बाकी 2 लाख की। नॉट वाइडली यूज्ड, इस प्रैक्टिस में हम इसको नहीं लेके आते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, देखो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्यों लेते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी यही चाहती है कि उसे कम से कम पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स थे वो मेंटेन हो जाए। अब पास्ट ईयर में प्रॉफिट सेम तो नहीं रहेंगे, किसी साल 10,000, किस साल 12,000, किस साल 8,000। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ईयर्स, जैसे 5 ईयर्स की हमने क्या ले ली, एवरेज ले ली, या लास्ट 3 ईयर्स की एवरेज ले ली। तो कम से कम हमें क्या है कि अपने पास्ट ईयर की एवरेज को मेंटेन करना है। इसलिए हमेशा हर एक बिजनेस यही चाहता है कि अगर बढ़े नहीं तो कम से कम पिछले 3 साल या 5 साल के एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्या है, मेंटेन रहे। तो दिस इज कॉल्ड, सो वी यूज द एवरेज प्रॉफिट क्लॉज। तो 2 मेथड इसके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट, अभी आगे देखेंगे। कंप्यूट गुडविल, तो ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि हर साल जैसे जैसे आपका बिजनेस के आगे बढ़ेगा तो आपकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो वी मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब जैसे मैं पहले साल आज गाड़ी लेता हूँ, तो वो क्या कहते हैं, फर्स्ट या सेकंड गियर पे आपको क्या है, रन करनी है। जब वो पुरानी हो जाएगी 3 साल, तो मैं उड़ाऊंगा डायरेक्ट फोर्थ या फिफ्थ गियर पे चलाऊंगा। तो मतलब टोटल आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए, 3 ईयर्स हो गए। तो आपकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखो, वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है मल्टीप्लाइड बाय वेट, एंड
फिर वेटेड एक्चुअल प्रॉफिट हम कंप्यूट करेंगे आफ्टर सर्टेन एडजस्टमेंट। फिर इस वेटेड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कब यूज करना है अपने मेथड, जब आपके प्रॉफिट में या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या फिर क्या है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर हैपेसर्ड वे में है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो सिंपल एवरेज लगाए। तो ये एडजस्टमेंट होंगी। अगर कोई इनकम टैक्स है तो देना ही है आपको हर साल के प्रॉफिट पे, चाहे वो प्रोविजन की फॉर्म में हो चाहे इनकम टैक्स की फॉर्म में हो, तो माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस है कि जैसे एबनॉर्मल का मतलब है कि नॉन ऑपरेटिंग लॉस, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। जो आइटम डेबिट में आ रही है P&L की वो ऐड होंगी, जो क्रेडिट में माइनस होंगी। एबनॉर्मल गेन है जैसे लॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, दिस एबनॉर्मल गेन रोज थोड़ी होगा, तो माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, रेंट रिसीव्ड है, तो दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमारे डेबिट साइड में आएंगे उनको ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग है, माइनस करेंगे। मैनेजरियल रेमुनरेशन डायरेक्टर की फीस है, तो उसको माइनस करेंगे। इनकम स्टॉप्ड इन फ्यूचर कि फ्यूचर में कोई इनकम बंद हो रही, नेचुरल कम हो गई, तो माइनस। एक्सपेंसेस आपको फ्यूचर में, पहले मेरे यहाँ अकाउंटेंट था उसको हमने हटा दिया तो बच गया ना, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है कि पहले आपने अपनी प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस नहीं कराया था बिजनेस के, अब आपने करा लिया, हर साल आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना, तो ये हमारा क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इसलिए हमने लिखा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वाली बात यूज की है। तो ये एडजस्टमेंट प्लस या माइनस दोनों हो सकती हैं, तो उनको एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके दो पार्ट है, नॉन टाइम एडजस्टेड और एक टाइम एडजस्टेड। पहले नॉन टाइम एडजस्टेड मीन सिंपल, सुपर प्रॉफिट जो हमारी फर्म अर्न कर रही है उसको हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, और जो अदर फर्म्स अर्न कर रही है उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं। तो जब आपके एवरेज प्रॉफिट एक्सीड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से, तो दिस एक्सेस इज कॉल्ड सुपर। सुपर का मतलब अधि, हिंदी में अधिलाभ बोलते हैं, अधि मीन अधिक। कि जब हमारी फर्म के जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं अगर दूसरी फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट से ग्रेटर हो जाते हैं, तो ये जो डिफरेंस आता है, जो एक्सेस है, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया है, जो कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, एम्प्लॉय किया है, उस पे जो रिटर्न आपको मिलता है 10%, 15%, चाहे डिविडेंड हो, अगर कंपनी है तो डिविडेंड होगा, अगर फर्म्स हैं तो रिटर्न बोल देते हैं हम उसको। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो दूसरी कंपनियां जिस भी रेट से अर्न कर रही हैं वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी आगे डिस्कस करते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। देखो एक्सेस आ गया, जो आपके एवरेज प्रॉफिट थे नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सीड होते हैं वो सुपर प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास गुडविल आ जाएगी। ये गुडविल है लास्ट में जो है, दिस इज नॉट सुपर प्रॉफिट, दिस इज गुडविल। तो ये गुडविल है आपकी। तो देख लेना, इसको गुडविल ही लिखेंगे। नेक्स्ट है टाइम एडजस्टेड, दिस इज कॉल्ड एन्युटी मेथड। तो दिस मेथड इसमें क्या है कि अगर जो हम गुडविल के लिए आज पेमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रॉफिट हैं उनकी आज वैल्यू कितनी होगी, ये हम देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एट एप्रोप्रिएट, कि हमें उस पर कितना इंटरेस्ट जो है रिसीव होगा, ये हमें देखना है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट द परचेजर शुड पे नाउ फॉर गुडविल, की आज जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ परचेजर में हूँ, तो व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज कंप्यूटेड एट एप्रोप्रिएट, की वो क्या होगा कि आज हम 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, तो एक साल के बाद मान लो 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो 110 होने चाहिए। तो 10 रुपए जो है आपके जो अर्न की, जो आज आपको मिल रहा है, तो वो क्या होगी, गुडविल। तो गुडविल हम क्या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में जो रिलेशन है, कि आज 100 रुपए है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या है 110, तो डिफरेंस क्या इंटरेस्ट है। तो मैंने दोनों साइड का साइन इसलिए लगाया कि जब फ्यूचर वैल्यू गिवन है कि आपको 110 रुपए मिलने वाले हैं, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। अगर 100 गिवन है, फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग देख रहे हैं कि गुडविल की आज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो हमें प्रॉफिट होने वाले हैं एडिशनल सुपर प्रॉफिट, तो किस रेट से, तो दिस इज कॉल्ड एन्युटी वैल्यू, दैट रेट इज कॉल्ड एन्युटी वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट पहले बताया कैसे कंप्यूट होंगे, गुडविल
एन्युटी वैल्यू अगर आपकी 1 रुपए से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई, जैसे 1 रुपए की वैल्यू 4 साल में 10% से 3 रुपए हो जाती है मान लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कम है 1 रुपए से तो डिवाइड कर देंगे, तो गुडविल आ जाएगा। तो लेट अस सी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कंप्यूट होती है, वो देखते हैं। तो आपने नेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कंप्यूट करते हैं, जितनी भी नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, उनको हम मार्केट वैल्यू पे लेंगे। जितने भी करंट एसेट है, अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो मार्केट पे लेंगे, नहीं गिवन है तो बुक वैल्यू लेंगे। जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज होंगी, पेबल वैल्यू जितनी आपने उनको पेमेंट करनी है, दिए तो ठीक है, नहीं बुक वैल्यू तो है ये, तो डिफरेंस जो आएगा दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। बट वी हैव टू टेक केयर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके लिए क्या करेंगे, करंट ईयर के जो प्रॉफिट होंगे उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो आएंगे उसका हाफ, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास जो आएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वाइल कंप्यूटिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको ये सावधानियां, ये प्रिकॉशंस लेनी कि अगर बिजनेस से बाहर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया आपने, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया आपने बिजनेस से बाहर, तो वो एक्सक्लूड करना। जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगे या अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होंगे लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, इनको भी आपने एक्सक्लूड करना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बिजनेस से बाहर, जब इन्वेस्टमेंट माइनस किए तो उसकी इनकम भी क्या होगी, एक्सक्लूड होगी, तो ये डिडक्ट कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया हो कैपिटल एम्प्लॉयड लेने को, तो हम हमेशा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि यू हैव टू टेक द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर हम एवरेज नहीं कंप्यूट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड तक छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से देखते हैं कि सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट की क्या करनी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो कैसे करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज में गिवन होगा। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपको बताया कैसे कंप्यूट होगी, तो गुडविल, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो दिस विल बी गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब कंप्यूट कर रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन का मीन होता है फुल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी, कि अगर 10% से 10,000 प्रॉफिट हो रहे हैं तो मीन्स कैपिटल कितनी थी आपके पास, मतलब, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन, फुल वैल्यू आपको कंप्यूट करना। तो सुपर प्रॉफिट आपको पहले बताया कैसे कंप्यूट होंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइजेशन। अब कौन सा मेथड के हैं बेस्ट है, वैसे तो सबसे बेस्ट मेथड जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, बट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको कंप्यूट करनी, तो अपनी इजीनेस के लिए क्या करते हैं, मोस्टली ऑफनली हम यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अदरवाइज कोई आपसे पूछे तो सुपर प्रॉफिट मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो हैप्पी लर्निंग, स्टे विद मी एट माय चैनल पंकज सर क्लासेस। स्वस्थ रहें, खुश रहें और घर पर रहें। तो हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अगले चैप्टर में।